Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Maths Class 9. I hope you and your family will be safe in these pandemic situations, because if you've seen around of us, there is so much COVID-19, that is novel coronavirus that can be spread so much fastly. So unnecessary, don't go outside of your homes, and if you're in homes, always be washing your hands using the sanitizers. While you're moving outside, use a specific form of mask. So stay home, stay safe. By using of the formation of stay home, using a specific form of digital medium of learnings that should be provided by the digital mediums of technology, as well as the school will provide the specific forms that generally used to upgrade your knowledge. We have been studied different chapters in the following in the previous days, like chapter number 1, chapter number 2, as well as the chapter number 3 and chapter number 15. First is the part of the number system, second polynomial, third coordinate geometry and probability. These are the 4 chapters that we have already studied into our previous class. Now today we'll start a very small lessons but very important as a part of geometry, that is based on the coordinate geometry, that is chapter number 5, Euclid's Introductions of Euclid's Geometry. That is generally in a textbook syllabus of page number 78 to 86. That is available entire chapter, which is on a form. Now first of all, geometry means what? The word geometry, that generally implemented from a Greek words. There is a 2 different word is there, geo and metry. Geo is generally considered as the earth and metry is considered as a measurement. So if we use to measurement of earth, generally we concept develop, that is called geometry. And this type of the techniques into the formation of the form of mathematics, different type of the peoples who are involved into the formation of this geometry, like Indian civilizations, China, Greek, Athens, etc. These are the general civilizations who are involved into the part of development onto this type of geometrical form, and this geometry they can be used into the various aspects, different aspects में use करते थे. For example, whenever the river of Nile that can be overflowed, जैसे वो भर जाती है पानी से और जैसे overflow होता है, so wipe of boundaries that can be came outs, वो एक boundaries वहाँ पे आ जाती है. So how this water revolutions which can be enter into the cities or maybe the loss of water into the formation of this form, how that can be prevented? तो उसके लिए जो ग्रीक के लोग थे, इजिप्ट के जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरीके के टेक्निक्स डेवलप किए थे एज अ फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री, which are generally very useful into the modern times. This type of geometry are useful into the modern times by developing, adapting the new type of methods, how we can be find the length, how we can be change the dimension, what are their breadth and height and length require, which kind of the degree that will be implemented. These all are the concept of geometry specifically from the measurement of earth that can be developed into the previous civilization, and that is generally used as a part of the modern implementation. Like in our India, if consider that evolutions of like Harappa and Mohenjo-daro, these are the 2 oldest civilizations which generally adapt this type of the techniques of the geometries, which generally develop a specific areas like parallel road, underground drainage system, different kind of rooms, specific formation of the height of the particularly bridges. So these are the techniques which is very well developed into the previous ancient times in our countries, which generally used to regulating into the modern times. So in which a Greek mathematician Thales, was a specific formation which generally given a specific name that called proof. Now proof is what? Proof is a generally one kind of statement that generally make a surety of any statement. Like for my example, a circle divides in a 2 parts. A circle in a divide by 2 parts when diameter that can be passes from the center of circle. That is the truth कि 2 अलग-अलग सेमी सर्कल में डिवाइड होता है जैसे आप डायमीटर को पास करते हैं. तो these are the statement as a form of proof which was already implemented by this type of the mathematicians. जिसमें later on Pythagoras was the one of the mathematician or the student of Thales which generally implement the different kind of application, different kind of concepts, different kind of methodology to find out the part of the geometry in a specific formation से कैसे geometry के concepts को हम use कर सकते हैं, कैसे उसको find कर सकते हैं, कैसे उसको modern civilization में use कर सकते हैं. These are the form of geometry. So Euclid's
just give the different type of definitions, axioms and postulates about the geometry. Euclid was one of the scientists of a mathematician, not a scientist. Euclid is a mathematician who developed different kind of definitions in terms of modern geometry, give the definitions, give the axioms and postulates. Axioms and postulates what? Axioms and the postulates are those kind of statements which we directly accept into the modern geometrical forms without any allegations. That is already, so which was earlier proved, that kind of statement we directly use in a form of geometry, that is called axioms and postulates. And there is also what that called theorem. Theorem is that kind of word which generally require a specific statement to be proved. एक अलग statement होता है जिसके थ्रू हमें प्रूफ करना होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डेटा, उसके अलावा टू प्रूफ एंड प्रूफ, ऐसे अलग अलग 3 सेक्शंस में हम उसको डिवाइडेड करके प्रूफ करते हैं. तो दिस आर द जनरली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द ज्योमेट्री. उसमें एक्सिमोस या पोस्टुलेट्स जो ऑलरेडी यूक्लिड्स ने डेवलप किए थे, उसमें सबसे पहला जो था कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो एनी पार्ट. फर्स्ट जो था पॉइंट, इफ यू ड्रॉ point do not have any specific parts. Okay, it is generally called as undefined terms. It's like a implementation small dot onto the papers or maybe a specific areas that having no any such kind of the parts, that already implemented as a part of the point. Now the line is what? It is the breathless length. Line is what? If you draw a line, okay, सो इसका जो लेंथ होगा वो एक्सपांडेड होगा, इट इज़ नॉट बी एंडेड स्पेसिफिक फॉर्म. तो लाइन इज व्हाट? इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. द एंड ऑफ लाइन इज जनरली व्हाट? इट इज़ अ पॉइंट. लाइन ऑफ एंड इज जनरली पार्ट ऑफ द पॉइंट. लाइक अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन इज इन विच इवनली नो पॉइंट ऑन इट सेल्फ. स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखेंगे तो विद देयर इज नो एनी पॉइंट इट सेल्फ, उसका खुद का पॉइंट नहीं होगा. That should be expanded in a formation of breathly. A plane surface is a surface which have a straight point on the line, it will be implemented. तो ऐसे अलग अलग ज्योमेट्री के टर्म्स में, जिसमें हम देखते हैं कि एक डिफाइंड टर्म होता है, एक नॉन डिफाइंड टर्म होता है, उसमें भी अलग अलग टर्म्स आते हैं, जिसमें पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, उसके अलावा रेज है, पैरेलल लाइन्स है, परपेंडिकुलर लाइन्स है, स्क्वायर है, सर्कल है. दिस आर द टॉपिक्स विच इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन विच यूज इन टू द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री. तो ये सारे डेफिनेशंस और एक्सिमोस थे विच वॉज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूक्लिड्स इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. उसके अलावा यूक्लिड्स के अलग अलग एक्सिमोस थे. यूक्लिड्स जनरली गिव द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिमोस. उस एक्सिमोस के अंदर हम देखते थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अगर दो सब्सटेंसेस अगर सेम हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऐसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दैट इज द फर्स्ट एक्सिमस विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूक्लिड्स. इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स ऑन बोथ हैंड साइड, आंसर विल बी सेम. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, द बोथ हैंड साइड आंसर विल बी सेम. अगर मान लीजिए इधर 14 है, इधर 16 है और 2 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो 14 + 2 16 + 2 बोथ आर सेम. तो इक्वल्स के अंदर अगर नंबर्स को आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी राइट हैंड साइड का आंसर्स आपका सेम होता है. होल इज व्हाट? इट इज़ अ ग्रेटर देन अ पार्ट. एक छोटा पार्ट से होल क्या होता है? एक बड़ा सा सेगमेंटेशन में कंसिडर होता है. एंड थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स ऑलवेज बी इक्वल. अगर दोनों इक्वल है और दोनों का हाफ करेंगे तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स है, डेफिनेशंस है, पोस्टुलेट्स है, एक्सिमोस है, ये सारे फॉर्म्स जो है यूक्लिड्स ने अलग अलग तरीके के अपने जो बुक्स है उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसका यूज़ जो है मॉडर्न ज्योमेट्री के अंदर उसका यूज़ करते हैं. सो यूक्लिड्स हैविंग जनरली 5 पोस्टुलेट्स, 5 अलग अलग पोस्टुलेट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग पोस्टुलेट्स आपके बुक के अंदर दिया है, जिसमें गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. तो देयर इज़ यूनिक लाइन. अगर 2 पॉइंट है तो उस पर एक यूनिक लाइन इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं. सो इफ देयर इज ओनली 2 पॉइंट, by using that 2 point we only create a single line, a unique line that can be passes. ये पहला उसका पोस्टुलेट था. फिर दूसरा जो एक्सिमोस ऑफ पोस्टुलेट्स उसका था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडिफाइनडली. एक लाइन को अगर आप टर्मिनेट करते हो तो वैसे वो इनडिफिनाइट फॉर्म्स में मूव करता है. अ सिंगल पॉइंट दैट कैन बी पासिस द मैनी ऑफ लाइन्स, इन्फिनाइट लाइन को पास करता है. ऐसे अलग अलग जो पोस्टुलेट्स थे वो एक्सिमोस या पोस्टुलेट्स ऑफ डेफिनेशंस के फॉर्म में यूक्लिड्स ने जो है एज अ मॉडर्न ज्योमेट्री के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है. तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके यूक्लिड ज्योमेट्री के फॉर्मेशंस में रहते हैं. सो दैट इज़ क्लियर.
नाउ अभी हम जो मूव करते हैं दैट इज ऑन पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 पे हम मूव करते हैं, जो बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो आपका एक्सरसाइज है उसमें हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ओरली आपको समझा दूंगा, बाकी जहाँ मुझे लिखने की जरूरत होगी वहाँ पे मैं आपको लिख के समझा दूंगा। तो इसमें पहला आप देखिए आपके बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया एज अ फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ऐसा एक वर्ड दिया है। ट्रू है फॉल्स है हमें बताना है। सो इट इज ट्रू और फॉल्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओनली वन लाइन कैन passes through single point, passes through a single point. So this statement is true or false? Generally this statement is false. It is a false statement. It is a false statement. Why it is a false statement? When we use a pencil or pen and we just make a single drop onto the paper, that is called as a single point. It is a single point. So using that single point we have draw a infinite, it means many of lines that passing through the particular point. So more than one line that can be passes through a single point. So this statement will be wrong कि एक ही line pass हो सकता है, more than one line, it means the infinite line that can be passes through the single point of source. एक से ज़्यादा लाइन जो है हम पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स के हिसाब से। दूसरा जो आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया उसमें दिया है देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन को पास आउट कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए अभी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए एंड बी। दीज आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सेकेंड जो ट्रू एंड फॉल्स है विच चेक इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85, इन्फिनाइट लाइन दैट कैन बी पासिस बाय यूजिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का यूज करके इन्फिनाइट लाइन को पास कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि दो लाइन का दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का यूज करके वी ओनली क्रिएट अ यूनिक लाइन। एक ही लाइन आप बना सकते हैं। यू कैन नॉट बी क्रिएट मोर देन वन लाइन बाय यूजिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स भी आपका क्या है? आपका फॉल्स है। ठीक है, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स भी फॉल्स है आपका, क्योंकि दो पॉइंट का यूज करके केवल एक ही लाइन आप बना सकते हैं। नाउ तीसरा दिया है टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस द इंडिफिनाइटली ऑन बोथ साइड। ऐसा क्वेश्चन दिया है, अ टर्मिनेटेड लाइन दैट कैन बी इंडिफिनाइटली। ये आंसर राइट है, दिस इज ट्रू। क्यों राइट है? क्योंकि अभी यूक्लिड्स का जो हम एक्सिमोस पढ़ रहे थे उसमें उसका पोस्टुलेट 2 था। यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट्स 2 कह रहा है उस पोस्टुलेट 2 के अंदर दिया है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन हैव अ मोर देन वन फॉर्म ऑफ इंडिफिनाइटली। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि अगर टर्मिनेटेड लाइन है दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली इन्फिनाइट फॉर्म में वो मूव कर सकता है। फोर्थ जो आपका ट्रू एंड फॉल्स दिया है दैट इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस विल बी इक्वल। अगर दो सर्कल सेम है तो उसका रेडियस सेम होगा। इट इज़ वेरी ट्रू। एक सर्कल है, ओके, ये दूसरा सर्कल है, बोथ सर्कल आर सिमिलर, बोथ सर्कल आर सिमिलर। दो सर्कल आपके कॉन्ग्रेंट कम होंगे व्हेन द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट व्हेन द रेडियस आर सेम। अगर दोनों सर्कल के रेडियस सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, देन टू सर्कल सेड टू बी कॉन्ग्रेंट सर्कल, बोथ आर इक्वल सर्कल व्हेन, जब दोनों का रेडियस आपका सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है, फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। पहले दो आपके फॉल्स थे, बाकी के दो आपके ट्रू हो गए। ना फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आप देखिए एक अलग अलग तरीके के फिगर्स दिए हैं। उस फिगर्स के अंदर दिया है कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। वाई? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है और ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये स्टेटमेंट भी राइट है। ये भी जो स्टेटमेंट वो राइट है क्योंकि यूक्लिड्स के जो एक्सिमोज है, यूक्लिड्स के एक्सिमोज में आपको कहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर ऑलवेज बी सेम टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के सेम होंगे। सिर्फ ए बी इक्वल टू बी सी, ओके, एंड बी सी इक्वल टू ए सी, देन ऑब्वियसली ए बी इक्वल टू ए सी होगा क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर ऑलवेज बी टू ईच अदर। तो ये आपके एक्सिमोज में कंसिडर किए जाते हैं। नाउ
अभी थोड़े से हम क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के आपको दिया है कि पैरेलल लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइंस के बारे में समझते हैं। नाउ फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द पैरेलल लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? नाउ लाइन के अंदर आप देखिए तो इफ मोर देन वन लाइंस दैट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देयर इज अ टू लाइंस आर देयर, line L and line M. Okay, so when the two lines which do not intersect to each other, अगर वो दोनों एक दूसरे के intersect नहीं करेंगे, both are moving indefinitely onto any directions but they do not intersect to each other, then two lines are called to be parallel. So it should be L parallel to M. Parallel के साइन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस लाइन को आप पैरेलल लाइंस कहते हैं। दूसरा आता है परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा जो है वो ये सारे टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बहुत ही फास्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा जो है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर दो लाइंस जो होती हैं वो जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो आपका कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो उसका परपेंडिकुलर कहोगे, L है और M है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे L परपेंडिकुलर M। इट मीन्स अगर वो एंगल्स 90 डिग्री का क्रिएट करता है तो उसका परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? पहला है लाइन। लाइन को केवल एक ही पॉइंट्स होते हैं, ओके। अगर लाइन और लाइन सेगमेंट में देखें तो लाइन के अंदर आप यहाँ पे ऐसे एक फॉर्मेशन, लाइन के अंदर इंडिफिनाइटली आप लाइन सेगमेंट यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन पॉइंट्स दैट कैन बी हैविंग, ओके। लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर इसमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइन सेगमेंट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट हैविंग अ स्टार्टिंग, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसको हम लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं, ओके। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। जैसे अभी आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज सर्कल हैविंग अ सेंटर पॉइंट, ओके। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? पहले तो वो समझना है। सो इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स आर ड्रॉ विद द स्पेसिफिक पॉइंट हैविंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑन अ स्पेसिफिक एरियाज, दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है O, वहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं OA और यहाँ से डिस्टेंस का यूज़ करके जो आप बना रहे हैं उसको आप सर्कल कहते हैं, दैट इज सिंपली कॉल एज अ सर्कल, ओके। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया, एक फिक्स डिस्टेंस जो आप लेते हैं बाय यूजिंग द फिक्स डिस्टेंस, और फिक्स डिस्टेंस का यूज़ करके जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप रेडियस कहेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सटेंडेड कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस का डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है ऑलवेज भी पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर ऑफ सर्कल में से ही पास होता है, जिसको डायमीटर कहते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। और इसके चारों चार साइड जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों चार साइड जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। वैसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर में भी चारों चार साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसके भी चारों चार एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये जनरल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कंसिडर होता है। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के वो सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कैसे यूक्लिड्स के जो एक्सिमोस के फॉर्मेशन है वो हमें प्रूफ करना है, हाउ वी कैन बी प्रूफ। जिसमें इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसको हम प्रूफ करते हैं, हाउ इट कैन बी प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ अ पॉइंट C that lies between the A and B, A और B के बीच में C है, and such that क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ऑन पेज नंबर और 86। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है कि इफ अ पॉइंट C that lies on a line segment of AB, AB के बीच में पॉइंट C है and AC इक्वल टू BC, ऐसा दिया हुआ है कि देन AC इक्वल टू BC, देन वी हैव टू प्रूव कि AC इक्वल टू 1/2 AB, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन की जो फिगर है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है हियर
क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ए और बी, उसके बीच में सी है। अ पॉइंट सी दैट लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है, सी है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि ए सी इक्वल टू बी सी, इन ए सी इक्वल टू बी सी, इट मीन्स C is midpoint of AB. C is midpoint of AB. AB का midpoint क्या आपका C. So C is the midpoint of AB. It means AC equal to BC. But हमें प्रूफ करना है कि AC equal to 1/2 AB, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। To prove AC इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू। अभी ऐसे सिनारियो के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो AC है और BC है दोनों आपके क्या हो गए, सेम हो गए, AC इक्वल टू BC, ओके। सो BC इक्वल टू AC, ये भी आप लिख सकते हैं। हैंस अगर ऐसे है हमारे पास AC इक्वल टू BC, तो आप BC इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। देन BC इक्वल टू AC, बोथ आर सेम। AC इक्वल टू BC, इट मीन्स व्हाट, BC इक्वल टू AC। अभी दोनों तरफ क्या करिए, दोनों तरफ आप किसको ऐड करेंगे, AC को आप ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ आप AC को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो बोथ एंड साइड वी ऐड AC। चलिए, सो AC प्लस AC, राइट, इज इक्वल टू BC प्लस AC। यूक्लिड्स का एक एक्सिमोस आपको याद हो तो यूक्लिड्स के एक्सिमोस में दिया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, दो जो सब्सटेंस है वो अगर एक दूसरे के सेम है तो आप उसमें कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड करो या कोई भी नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड 5 है, इधर 1 ऐड करो इधर 1 ऐड करो, आंसर सेम ही मिलेगा। तो AC इक्वल टू BC है तो मैंने दोनों में क्या ऐड कर दिया है, AC और AC। थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, so if we add any numbers which are always be equal, so AC plus AC क्या हो जाएगा, 2AC, AC plus AC 2AC। और हमारे पास BC और AC है, AC और BC इन दोनों का एडिशन आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो AB इक्वल टू AC प्लस BC। क्यों, क्योंकि C अगर मिड पॉइंट है तो AC और BC इन दोनों का एडिशन एंटायर लाइन सेगमेंट AB मिलेगा। सो 2AC इक्वल टू AB, तो मुझे तो AC फाइंड करना है तो 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB, देन AC इक्वल टू 1/2 AB। तो जो यूक्लिड्स का एक्सिमोस है उस यूक्लिड्स का एक्सिमोस का यूज़ करके आप इसको इजीली इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो समझ में आया कैसे प्रूफ किया है। चलिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 5, और उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन जो है तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है कि जो क्वेश्चन 4 था उसी क्वेश्चन के फिगर पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैं रीड करता हूँ कि इन क्वेश्चन नंबर 4 अ पॉइंट C is called a midpoint of AB and D is also added on the formation, then we have to prove that it should be a part of the numbers. So C and D are generally a coincident, ऐसा हमें प्रूफ करना है कि नॉट हैंडली ऑफ वन सेगमेंट, इसका एक से ज़्यादा मिड पॉइंट होगा, ऐसे में प्रूफ करना है। तो पहले तो उसके लिए एक फिगर बना देते हैं और उसके बाद उसको प्रूफ करते हैं। सो लेट वी ड्रॉ अ फिगर A, C, D और B, ऐसे एक फिगर अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया है फॉर्मेशन AC जो होगा वो AB का 1/2 हो जाएगा और वैसे ही AD भी जो होगा वो AC आपका 1/2 AB हो जाएगा। सो AC इक्वल टू 1/2 AB। वाई, बिकॉज C एंड D आर जनरली मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन में दिया है आपको कि C एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। तो इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट मीन्स AC इज व्हाट, 1/2 AB, और D है तो AD इज ऑल्सो भी 1/2 AB। सो AD इक्वल टू 1/2 AB, right? Equation number 2. So subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, so AD minus AC
is equal to 1/2 AB minus 1/2 AB. It means what? AD minus AC is equal to 0. AD minus AC आपको क्या मिलेगा? AD minus AC equal to 0. तो it means C and D are the coincident. Hence C and D coincide. ठीक है, तो हो गया C and D are the coincide. तो ऐसे आप उसको सिंपल फॉर्म में प्रूव कर सकते हो. एक और क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका टेक्स्ट बुक का, उसको सॉल्व कर देते हैं. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया है कि वहाँ पे एक फिगर इंप्लीमेंटेशन है फिगर का, ABCD ऐसे फिगर ड्रॉ की हुई है, उसका यूज़ करते हैं हम. दैट इज ABC एंड D. ऐसा क्वेश्चन दिया है ABCD और हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD और क्वेश्चन दिया है AC इक्वल टू BD. इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? देन प्रूफ AB इक्वल टू CD. देन वी हैव टू प्रूफ AB इक्वल टू CD. राइट. देखिए सारे क्वेश्चंस जो है दैट ऑल आर द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन टू द यूक्लिड्स एक्सिमोस. यूक्लिड्स एक्सिमोस पे ही बेस्ड है, उसी का यूज करना है यहाँ पे. अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया है मुझे AC इक्वल टू BD, दैट इज गिवन, दैट राइट हियर AC इज इक्वल टू BD, दैट इज अ गिवन. दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गिवन इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्म. अभी क्या करिए, दोनों तरफ यहाँ पे जो AC इक्वल टू BD है, तो AC इज व्हाट? AC इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BC और BD इज इक्वल टू व्हाट? BC प्लस CD. वो दोनों आप लिख दीजिए. सो AC इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू व्हाट? BC प्लस CD. BC एलिमिनेटेड, देन व्हाट? AB इक्वल टू CD. तो ऐसे आप उसको प्रूव कर सकते हो. सो यूक्लिड्स के जो एक्सिमोस पोस्टुलेट्स जो है उसका यूज़ करके आप ये सारे स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर सकते हैं. तो आई होप कि आज का जो सेशंस था यूक्लिड्स ज्योमेट्री का आपको समझ में आया होगा. आप उस तरह के क्वेश्चंस और भी अगर टेक्स्ट बुक में है तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सॉल्व करते रहिए. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज बाय यूजिंग दिस फ्री टाइम्स इन योर होम्स. So students, I hope for the today's lecture it should be suitable for you, easily understand by you. One minute tomorrow will be the new topics of the new subject of the chapters. We'll moving on the tomorrow. So keep revising, keep studying, and stay home, stay safe. Students, take care. Bye.